Very good afternoon to all my viewers, and a big thank you to all of you who have joined this session today. And I hope you are able to gain an insight on the topic we are discussing today, that is anti-inflammatory diet. So how it helps in various disorders and how it is linked to weight gain, obesity, overweight. मतलब हम ये एक ऐसा टॉपिक है ना मैम के सबके दिमाग में ये बहुत सवाल है कि ये इन्फ्लेमेशन होता क्या है, ये हेल्प कैसे करता है हेल्थ को बेटर करने में, और वेट गेन में इसका क्या रोल है। तो आप मतलब मैं आपसे सीधे सवाल चालू करती हूँ कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट कहते किसको है और ये कैसे मतलब हमारे लिए मतलब ऐसी डाइट फॉलो करना ठीक है। Dipali, this is a very, I would say, apt question, to ask in the beginning of the session. But to all my viewers, who do not know the word inflammation, they do not understand what inflammation is. First, I would like to, go into the explanation of what inflammation is and then talk about, anti-inflammatory diet. Because it's very, very important, to understand what we are talking about. Right. So if we say नाम सबने सुना है एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, बहुत चर्चा सब जगह हो रही है, लेकिन एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट से पहले इन्फ्लेमेशन जानना बहुत जरूरी है। करेक्ट, एग्जैक्टली दीपाली। सो होता क्या है कि कई बारी जैसे आप देखोगे कोई बॉडी में अक्यूट इन्फेक्शन हो जाती है, जैसे कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है, या कोई इरिटेंट्स आ जाते हैं, या कोई इंजरी हमें हो जाती है, तो इन्फ्लेमेशन हैपेंस as a body's natural response. It is a body's natural defense process, and this happens to reduce the effect of that infection or irritant or toxin or injury. And this kind of inflammation we call acute inflammation, and this stays for a very short period of time. So an anti-inflammatory diet is not needed for this, because this is the body's defense mechanism which is happening, and it ends when the injury or that factor is removed. But sometimes it happens, in absence of these factors. There is no infection, there is no injury, nothing like that, no irritants, and the inflammation is happening. Many times I've seen Dipali, when the blood works come, the blood reports come to me with the people who are very overweight or who have diabetes, mellitus, or some other, metabolic disorder, autoimmune disorder. तो उनका inflammation markers बड़े होते हैं without any reason. They do not have any infection in the body. So such kind of inflammation, which doesn't have any reason, but it's there consistently in the body. Such kind of inflammation is called chronic inflammation. So when this chronic inflammation happens, then it damages the healthy tissues. Now it's no longer a defense process. It damages the healthy tissues, the healthy cells, the organs of the body. And hence it is very, very important at this stage of time to introduce the anti-inflammatory diet. And this anti-inflammatory diet then, negates the effect of this chronic inflammation. It will neutralize the effect of this chronic inflammation, which is very, very important, which is damaging now the healthy cells. So here the importance of an anti-inflammatory diet comes. Sometimes, you'll see in certain disorders, which we call autoimmune disorders, where the body's immune response, is itself attacking the body's cells mistakenly. So in such autoimmune disorders, there are many like that, you must have heard about them, like rheumatoid arthritis. Then we have multiple sclerosis, an inflammatory condition of the skin called as psoriasis. Then we have irritable, bowel diseases like ulcerative colitis, Crohn's disease. So all these autoimmune disorders have chronic inflammation happening in the body, so in such places, anti-inflammatory diet has a big role. So it is very, very important to do an anti-inflammatory diet at this moment of time. So I think now it should be clear in your minds where it is needed and what is inflammation. right. और ये किसको फॉलो करनी चाहिए? जिनको क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, जो कि ब्लड रिपोर्ट से भी पता चल जाता है। आई थिंक एक ब्लड पैरामीटर होता है, इफ आई मैम प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, HRP करके कुछ ऐसा ब्लड पैरामीटर होता है जिससे पता चलता है कि आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है क्या।
क्योंकि ऊपर से नॉर्मल दिखता है लेकिन इंटरनली आपका इन्फ्लेमेशन होता है, जो ब्लड रिपोर्ट्स के थ्रू ही पता चलता है। इसमें तो आई थिंक ESR आपका आता है, erythrocyte sedimentation rate, which we call, or C-reactive proteins. These are the inflammation markers, which tells us in the blood reports कि the inflammation is there. तो अगर वो बढ़े हुए हैं आपके C-reactive proteins, आपका ESR बढ़ा हुआ है, तो then it is a sign, without any infection, that there is chronic inflammation in the body. मैम ये इन्फ्लेमेशन वेट गेन होने में कैसे कंट्रीब्यूट करता है? वेट बढ़ क्यों जाता है इन्फ्लेमेशन की वजह से? और डाइट कैसे हेल्प कर सकती है इसको मैनेज करने में? Right. So Dipali, when we say, weight gain or overweight, इसमें बहुत से hormonal aspects भी आ जाते हैं. So, when weight gain happens and inflammation is there in the body, so this chronic inflammation disrupts, it disturbs the body's ability to process two hormones, which we call leptin and insulin. And this leptin is responsible for appetite regulation. Insulin is responsible for metabolism and the sugar control. So when this happens, there is a resistance which develops to insulin and leptin, and the production of insulin ultimately goes down. And when this goes down, the sugar spikes up. The sugar spikes up in the blood. It is not able to enter the blood cells. The insulin does not work effectively. So this stage we call a stage of insulin resistance. And when this happens, in the body, आप देखोगे blood sugar बढ़ने लगती है, तो a thing called as diabetes mellitus happens. जब ये बढ़ने लगती है, तो आप देखेंगे कि fat storage हमारी body में बढ़ने लगती है due to insulin resistance, because metabolism slow हो जाता है, the fat is not metabolized, and liver में fat accumulation हो जाती है, which is called fatty liver, So ये processes एक vicious cycle kind of develop हो जाती है, where there is insulin resistance, deposition of fat in the various organs. आप देखोगे blood में sugar बढ़ जाती है. So insulin resistance happens, when there is a lot of chronic inflammation in the body. और एक चीज और जो डिस्टर्ब होती है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, लेप्टिन. सो लेप्टिन टेल्स यू कि आपकी एपेटाइट है कि नहीं है, बढ़ गई है. तो ये लेप्टिन आपका एपेटाइट को इंक्रीज कर देता है, बिकॉज लेप्टिन रेजिस्टेंस आल्सो हैपेंस व्हेन देयर इज इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी. तो आपकी एपेटाइट इंक्रीज जो होती है, उसके कारण आप ज्यादा खाने लगते हैं. यू टेंड टू ईट मोर, यू ईट मोर कैलोरीज, more fat storage, and आपका metabolism भी थोड़ा सा slow हो जाता है, so less of fat burning. So all these factors combined, I would say, lead to, weight gain. So when there is chronic inflammation in the body, of course, in the blood works it comes, but साथ साथ में आपको weight gain भी दिखाई देगा in a person who has chronic inflammation. Plus फैटी लिवर का प्रॉब्लम हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटिस, एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है, बिकॉज द शुगर स्पाइक्स अप इन सच पीपल, सो this vicious cycle is coming up, where inflammation, so insulin resistance, so more fat storage, more weight gain, तो आपका फिर inflammation और ज्यादा होएगा, and फिर वापस weight gain. So it's like it's a vicious cycle going on, right? So I think हाँ जी, जो लोग वेट लॉस करने के हिसाब से अगर एक्सरसाइजिंग चालू कर देते हैं या जिम जाने लगते हैं, तो वहां पे भी तो उसकी वजह से भी तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है. तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है? तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा तो अगर इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा तो लाइक आई सेड, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेप्टिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो आपका ऑटोमेटिकली फैट स्टोरेज बढ़ेगा. बट इफ यू एक्सरसाइज, सम ऑफ दीज कैलोरीज वुड बी बर्न्ड, सो आपका वेट थोड़ा तो नीचे जाएगा. बट अगर आपको प्रॉपर वेट लॉस करना है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस दिस इन्फ्लेमेशन विद एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट. हाँ, तो ये आपका ने जो बहुत सही बोला कि वी नीड टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन. तो इंडियन फूड्स के हिसाब से मैम कौन सी ऐसी चीजें हैं, ऐसे कौन सा इंडियन फूड है जो कि हमें लेना चाहिए इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए, जिससे
मतलब इनडायरेक्टली हमारे हेल्थ कंडीशन भी इम्प्रूव हो और हमें वेट लॉस में भी सपोर्ट मिले। राइट। सो अगर आप एंटी इंफ्लेमेटरी बात करें डाइट की, सो यू नो देर आर नंबर ऑफ थिंग्स इन इंडियन मील्स जो आपको इन्फ्लेमेशन रोकने में मदद करते हैं। जैसे आप देखिए बहुत से स्पाइसेस हैं हमारी इंडियन डाइट में, जैसे टर्मरिक है। टर्मरिक अगर हम बोले तो उसमें एक एक्टिव कंपोनेंट होता है, इट इज अ पॉलीफिनोल कॉल्ड एज कर्क्यूमिन, जो आपकी बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को बहुत कम करता है। अगर इसके साथ हम ब्लैक पेपर का यूज करें, इट हैज एन एंजाइम कॉल्ड एज पाइपरिन जो उसकी एब्जॉर्प्शन को एनहांस करता है। तो टर्मरिक इन इटसेल्फ विद दिस बायोएक्टिव कंपोनेंट कॉल्ड एज curcumin इज वेरी इफेक्टिव इन लोअरिंग दिस इन्फ्लेमेशन। देन इसके बाद आपका गार्लिक आ जाता है, उसमें बहुत सारे सल्फर कंपाउंड्स होते हैं। तो आप देखोगे गार्लिक भी आपकी इन्फ्लेमेशन लोअर करने में बहुत हेल्पफुल होता है। देन वी हैव जिंजर, यू नो, जिंजर में भी आप देखोगे एक कंपोनेंट होता है जिंजरोल, जो आपकी इन्फ्लेमेशन को लोअर करने में बहुत मदद करता है। Then of course, you know, when we do a weight loss diet, we tell the clients to reduce the amount of fat. बट फैट्स में भी एक स्पेसिफिक फैट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, उसमें आपके ओमेगा 3 आ जाते हैं। सो ओमेगा 3 अगर हम बोलें तो अगर ओमेगा 3 हम किसी सप्लीमेंट फॉर्म में भी लें, जैसे फिश ऑयल्स के सप्लीमेंट आप देखेंगे बहुत सारे होते हैं, तो उससे भी आप देखोगे आपका इन्फ्लेमेशन लेवल लोअर हो जाता है। दिस वाज ऑफ कोर्स एज अ वेरी गुड curcumin, you know, supplement, fish oil supplement। curcumin supplement आप देखोगे उसमें पाइपरिन भी डाला हुआ है। फिश ऑयल सप्लीमेंट इज वेरी हाई स्ट्रेंथ। तो अगर हम ओमेगा 3 अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करें थ्रू अ सप्लीमेंट या फिर नेचुरल वे में इनकॉर्पोरेट करें, जैसे आप देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ सीड्स, नट्स, तो वो भी आपकी इन्फ्लेमेशन लोअर करते हैं। फिर बहुत सारे आप देखोगे फल भी होते हैं, जैसे citrus fruits, pomegranate, berries, which have a lot of antioxidants. Citrus fruits में आप देखोगे vitamin C होता है, which is in itself an antioxidant. तो वो भी आपकी इन्फ्लेमेशन लोअर करता है। सब्जियों में आप देखोगे ब्रोकली, जो आपकी क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स हैं जो अभी मौसम में आ भी रही हैं, जैसे गोभी है, ब्रोकली है, कैबेज है, उसमें आप देखोगे एक कंपोनेंट होता है सल्फरोफेन करके, जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को लोअर करता है। सो यू नो दीज थिंग्स इफ वी इनकॉर्पोरेट इन द डाइट, इससे आप देखोगे बहुत इन्फ्लेमेशन लोअर होती है। फिर ग्रीन टी, यू नो, ऑफन यू सी पीपल टेकिंग ग्रीन टी। ग्रीन टी में भी आप देखोगे एक ईजीसीजी करके एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपकी इन्फ्लेमेशन को बहुत लोअर करता है। इट हैज लॉट ऑफ कैथेचिन्स, सो इट लोअर्स द इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। तो अगर आप 1 या 2 कप ग्रीन टी के रोज लें, आप देखेंगे उससे भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन लोअर होती है, यू नो। से देन ऑफ कोर्स बहुत से आप देखोगे सप्लीमेंट्स भी आते हैं जो आपकी इन्फ्लेमेशन, हर्बल टीज भी आते हैं, विच आई टॉक अबाउट, यू नो, इन डिटेल। सो वो आप देखोगे वो भी आपकी इन्फ्लेमेशन लोअर करने में बहुत मदद करते हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम कॉम्बिनेशन में डालें अपनी लाइफस्टाइल में, तो आई एम श्योर, यू नो, द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन विल लोअर इन द बॉडी। आपने मैम टर्मरिक के बारे में बोला था कि टर्मरिक इन्फ्लेमेशन कम करती है, तो उससे मुझे याद आया कि हम लोग को बचपन से ही बोला जाता था कि दूध लो, अगर चोट वोट लग गई है तो डेफिनेटली इन्फ्लेमेशन होगा, तो दूध लो हल्दी डाल के और साथ में थोड़ा काली मिर्च डाल के। लेकिन जिनको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है उनको 1 ग्लास दूध हल्दी डाल के रोज लेने से फर्क पड़ता है कि हम कुरकुमिन ले या सिर्फ हल्दी का दूध उससे काम चल जाएगा, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। राइट, तो दिस इज अ वेरी एप्ट क्वेश्चन, यू नो। कई बार मेरे से क्लाइंट्स कहते हैं कि अगर हम हल्दी नेचुरल वे में ही, कच्ची हल्दी बहुत आ रही है, हम उसकी येलो टी बना लें, हम उसकी, यू नो, टर्मरिक टी बना लें, उसका हम खाने में इस्तेमाल कर ले, हम हल्दी वाला दूध पी ले, तो आई एम श्योर इट वर्क्स। व्हाई डू वी नीड अ कर्क्यूमिन सप्लीमेंट, यू नो, दे ऑफन आस्क मी दैट क्वेश्चन। तो अगर हम कर्क्यूमिन सप्लीमेंट की बात करें तो इट्स लाइक, यू नो, टेकिंग 2 to 3 tablespoons, ऑलमोस्ट आई वुड से छोटी कटोरी आप हल्दी की खा रहे हैं,
अब इतना हल्दी तो हम डेली डाइट में डालते नहीं है। अगर हम हल्दी वाला दूध भी बना रहे हैं तो हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, एंड अगर हम कोई सेपरेट टी बना रहे हैं, मे बी 1/4 और हाफ टी स्पून ऑफ हल्दी विल बी एडेड। बट वहीं पे अगर हम एक कर्क्यूमिन सप्लीमेंट डाल देते हैं विच इज piperine in it, like Besos I said has a very wonderful supplement, a curcumin supplement. तो वो बॉडी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बहुत इफेक्टिवली, बिकॉज इट्स कमिंग इन अ मोर स्ट्रॉन्गर डोज, अ मोर पोटेंट डोज, सो वो बहुत इफेक्टिवली आपकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को लोअर करने में मदद करेगा। Right. Same is the case with omega-3 also. आप डेली डाइट में omega-3 उतना नहीं, मोस्टली लोग अपने इंडियन डाइट में मेरे ख्याल से इतना नहीं लेते जितना कंजम्पशन डेली बेसिस पे लेने की जरूरत होती है। तो सप्लीमेंट्स डेफिनेटली हेल्प टू मेक अप दैट रिक्वायरमेंट ऑफ डेली डाइट। तो omega-3 फिश ऑयल जैसे कि बेस्ट न्यूट्रिशन का है, मैम ने का एक्सपीरियंस है ओमेगा-3 फिश ऑयल में भी बेस्ट न्यूट्रिशन के, कि वो सप्लीमेंट रिकमेंड करती हैं। तो मैम आप कुछ बोलना चाहेंगे omega-3 फिश ऑयल के बारे में? Acha, I have a question also coming out from Neena Manocha, I think. What about those who are vegetarian, who cannot take fish oil? Yeah. Well, बहुत सारे ऐसे होते हैं वेजिटेरियंस जो मुझे ऑब्जेक्ट करते हैं कि मैं फिश ऑयल ही नहीं लेना चाहता, फिश ऑयल की क्या जरूरत है, हम नेचुरल फॉर्म में कर लें। तो आई वुड लाइक टू एजुकेट देम ऑन दिस एस्पेक्ट ऑल्सो। जब आप वेजिटेरियन फॉर्म में ओमेगा-3 लेते हैं, ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन फॉर्म में ओमेगा-3 नहीं आते, बट ये है कि जैसे आप फ्लैक्स सीड्स ले रहे हो, वॉलनट्स ले रहे हो, चिया सीड्स ले रहे हो, फ्लैक्सीड ऑयल ले रहे हो, या आप कोई और ब्राजील नट्स ले रहे हो, तो दीज आर ऑल वेजिटेरियन फॉर्म्स ऑफ ऑलिव ऑयल ले रहे हो, वेजिटेरियन फॉर्म्स ऑफ ओमेगा-3। जब आप वेजिटेरियन फॉर्म ऑफ ओमेगा-3 लेते हैं तो उसमें एक ओमेगा-3 फैटी एसिड आता है, पॉलीअनसैचुरेटेड, विच वी कॉल ALA करके आता है, जो बॉडी में यूटिलाइजेबल फॉर्म में नहीं होता। बट जब हम वर्सेस दैट कोई फिश खाते हैं या फिश ऑयल का सप्लीमेंट लेते हैं, तो आप देखोगे उसमें एक यूटिलाइजेबल फॉर्म में पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आते हैं, जिसको हम कहते हैं EPA एंड DHA, जो बॉडी पूरा यूटिलाइज कर लेती है, बहुत अच्छे से यूटिलाइज करती है उसको। सो इट इज मोर इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द इन्फ्लेमेशन एट दैट स्टेज। इसका मैं एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल भी दूंगी विच विल मेक द वेजिटेरियंस अंडरस्टैंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक द फिश ऑयल। आप देखोगे कि इसमें जैसे आप वॉलनट खा रहे हैं, सपोज यू आर टेकिंग 7 वॉलनट्स एंड यू थिंकिंग मुझे बहुत ओमेगा-3 मिल जाएगा फ्रॉम दोज वॉलनट्स, एंड डेफिनेटली वॉलनट्स हैव अबाउट, अगर आप 7 वॉलनट खा रहे हैं तो आपको 250 mg ALA ओमेगा-3 फैटी एसिड्स मिलते हैं, बट वो ALA यूटिलाइजेबल फॉर्म में नहीं होता बॉडी में। तो जब वो बॉडी में 250 mg जाता है तो आप देखोगे उसमें से केवल 200 mg 200 mg आपकी बॉडी यूटिलाइज कर पाती है और रेस्ट गोज वेस्ट। सो आप कितने वॉलनट्स खाएंगे नाउ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी टू रिड्यूस द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। एंड अगर आप कहें कि हम 10 वॉलनट खा लें, 15 वॉलनट खा लें, तो दोज वॉलनट्स आर कमिंग पैक्ड विद कैलोरीज, सो वो आपका वेट गेन करवा देंगे। तो इट इज बेटर टू स्विच टू अ फिश ऑयल सप्लीमेंट विच इज having that EPA and DHA in a utilizable form which the body effectively utilizes, and आप देखोगे उससे chronic inflammation, आपका C reactive protein, आपका ESR बहुत effectively reduce होएगा with that fish oil supplement। and अगर वो fish oil supplement थोड़ा सा इस form में है, जैसे बेसोस का ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में है, it is not in that synthetic ethyl ester form, तो आप देखोगे उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ही अच्छी, बहुत इफेक्टिव होगी, एंड EPA DHA के फॉर्म में आपका आएगा जो बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी। सो इट इज समटाइम्स advisable to take fish oil rather than, even in vegetarians, rather than depending on the vegetarian sources, because वो body utilize ही नहीं कर पा रही, तो आपका chronic inflammation कम ही नहीं होएगा। so that I think explains the thing कि why we cannot take vegetarian sources and why depend on fish oil.
यस, एंड फॉर वेजिटेरियंस अगर वो ट्राइग्लिसराइड सोर्स लेते हैं ओमेगा का, जैसे आपने बोला, तो जो फिशी बर्ब्स वगैरह नहीं आती, तो दे विल नॉट फील कि कुछ डिस्कम्फर्ट है वो सप्लीमेंट लेने में, और आपकी हेल्थ पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी देयर इज वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम आवर व्यूअर्स कि एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट किस एज ग्रुप में फॉलो करना चाहिए? एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट का ऐसा कोई एज ग्रुप नहीं है। इट इज आप सरप्राइज होंगे कि मेरे पास 12 साल के बच्चे आते हैं विद इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड ओवरवेट, जो लाइक वो विशियस साइकिल उनमें ऑलरेडी स्टार्ट हो गई होती है। तो आप देखेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी सर्टेन एज में एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट स्टार्ट करते हैं। आप सब एज ग्रुप्स में स्टार्ट कर सकते हैं, बट ये है कि सप्लीमेंट्स अगर हम कहें तो देन we say a safer ages if you're in the adult stage, कि आप 17-18 years के हैं, you're able to tolerate those supplements. बच्चों में हम बहुत ज्यादा supplements नहीं prefer करते. Then we rely on the natural forms of antioxidants or phenolic compounds, या हम natural way में उसको anti-inflammatory diet deal करते हैं. But if it is an adult, then definitely we say कि आप supplement में जाइए, because it works more effectively. Yes. You wanted to talk about the herbal teas. I mean, apart from these supplements like curcumin, omega-3, there are some herbal teas which can be used as a part of anti-inflammatory diet. Right. अच्छा, supplements में सिर्फ curcumin और आपका fish oil ही नहीं होता है. Many people are not aware कि जो आपका अश्वगंधा है, that is an adaptogenic herb, and ये भी आपकी बहुत सी इन्फ्लेमेशन को कम करता है। जैसे आपकी न्यूरो इन्फ्लेमेशन है या इन्फ्लेमेशन इन दी आर्टरीज है, अगर वो हो तो आप देखोगे स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक, इस तरीके की चीजें होती है। फिर अगर इन्फ्लेमेशन आप देखोगे आपकी इन जनरल ऑर्गन्स में आ रही है ब्लड के थ्रू, तो आप देखोगे इन सब इन्फ्लेमेशन में आपका अश्वगंधा भी बहुत हेल्प करता है। अश्वगंधा एक बहुत अच्छी चीज भी करता है, it's lowers the level of cortisol, तो which is the stress hormone, तो वो कम होगा तो आप देखोगे उससे भी इन्फ्लेमेशन कम होती है, chronic inflammation, because the stress hormone also plays a very important role. And again I would say best source is making this ashwagandha and it is in strong strength, so वो भी अगर आपके डाइट में आएगा तो आप देखोगे अश्वगंधा भी आपको हेल्प करता है। Then another supplement is there called as grape seed extract. I don't know whether you guys have heard about it. And ये आपके grapes की seed से बनता है, which are very very better. उनको dry करके ये supplement बनाया जाता है, और इसमें बहुत से antioxidants होते हैं जो आपके free radicals को neutralize करते हैं. Free radicals are unstable compounds which are formed due to pollution or any stressor और यूवी रेडिएशन। तो जो ये फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में बन जाते हैं उनको सप्रेस करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए होते हैं। तो ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट्स में आप देखोगे बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। नाउ बेस्ट सोर्स हैज अ वंडरफुल ग्रेप सीड आई वुड से एक्सट्रैक्ट आल्सो। सो आप देखोगे ये सारे सप्लीमेंट फॉर्म में अगर हम लें तो इट वर्क्स मोर इफेक्टिवली। देन टॉकिंग अबाउट हर्बल टीज अगर हम बोले तो नेचुरल फॉर्म में अगर हम बोले तो हम जिंजर टी ले सकते हैं, टर्मरिक टी ले सकते हैं, बट इसमें भी बहुत सारी ऐसी हर्बल टीज हैं जो विच पीपल आर नॉट अवेयर। इसमें सबसे पहले आपकी आ जाती है डैंडलियन टी। आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन डैंडलियन टी एंड बेसोस की डैंडलियन टी के ऊपर ही मैंने बनाया था एक बारी, सो आप लोग सेपरेटली उसको भी वॉच कर सकते हैं, इट इज अपलोडेड। तो डैंडलियन आप देखेंगे एक पीले रंग का फूल होता है, येलो कलर फ्लावर, उसकी रूट्स और लीव्स यूज होती है टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। वो आपकी ऑफ कोर्स शुगर लेवल्स, बहुत सी और भी चीजें करता है, लिवर को डिटॉक्स करता है, बट इन्फ्लेमेशन भी बहुत रिड्यूस करता है। एंड उसमें आप देखोगे एक कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं टैराहेक्सास्टेरोल, जो आपकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बहुत इफेक्टिवली रिड्यूस करता है। देन वी हैव नेटल लीफ टी, उसमें भी आप देखेंगे बहुत से प्रो एंथोसाइनाडिन्स, ओपीसीज जिनको हम कहते हैं वो होते हैं, तो वो भी आप देखोगे बहुत ज्यादा आपकी इन्फ्लेमेशन को लोअर करते हैं। तो नेटल लीफ इज नॉर्मली यूज्ड पीपल विद हाई यूरिक एसिड, किडनी डिसऑर्डर्स प्लस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन।
तो नेटल लीफ भी आप देखोगे आपकी इन्फ्लेमेशन को बहुत इफेक्टिवली लोअर करता है। देन देयर इज अनदर टी कॉल्ड एज कैमोमाइल टी, जो अगेन आपकी कोर्टिसोल हार्मोन की सिक्रीशन को कम करता है, स्ट्रेस हार्मोन की सिक्रीशन को। एंड कैमोमाइल टी भी आप देखोगे आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, आपकी स्ट्रेस को कम करता है, एंड इन जनरल आपकी डाइजेशन भी इंप्रूव करता है। तो कैमोमाइल टी ऑल्सो अगेन इज वेरी वेरी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। तो एंड ऑफ कोर्स आर ग्रीन टी विच आई स्पोक अबाउट अर्लियर। तो आप देखोगे ये सारी चीज अगर हम इनकॉर्पोरेट करें अपनी डाइट में तो बहुत चेंज आएगा इन द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन फैक्टर्स। राइट राइट। सो ये जितनी हर्बल टीज है जिनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है मैम, वो लोग भी ले सकते हैं? इट डिपेंड्स काइंड ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या क्या वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। जैसे अगर किसी को डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस भी हैं, जैसे मैंने बोला इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इस तरीके की चीजें, उनमें आप देखोगे कैमोमाइल टी बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है, बिकॉज वो डाइजेशन भी इंप्रूव करेगी, इन्फ्लेमेशन भी कम करेगी, स्ट्रेस भी कम करेगी। समटाइम्स इट इज स्ट्रेस इंड्यूस्ड ऑल्सो द इन्फ्लेमेशन। तो कैमोमाइल टी बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। अगर किसी को लिवर का प्रॉब्लम है, फैटी लिवर का प्रॉब्लम है, साथ में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, तो उसमें आप देखोगे डैंडलियन टी बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। तो इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ कंडीशन ऑल्सो समटाइम्स व्हाट यू आर हैविंग। अगर कोई किडनी डिसऑर्डर है, किडनीज आप देखोगे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड करती हैं टू इन्फ्लेमेशन, एंड कई बार वो इन्फ्लेमेशन इरिवर्सिबल हो जाती है, क्रिएटिनिन लेवल्स गो रियली हाई, तो उसमें आपको नेटल लीफ मदद करेगी। तो इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ डिसऑर्डर यू हैव एंड विच हर्बल टी टू सिलेक्ट। आप सारे तो नहीं पियेंगे ऑफ कोर्स, बट ये है कि depending on the kind of clinical disorders you have plus the inflammation, you make a call ke which herbal tea needs to be done in that particular patient or in that particular person. There is a question, ma'am. Ms. Shivani is asking that what should be avoided in the case of high CRP level increase for gastro patients and for having normal in liver patients. I mean, right. तो अवॉइड की बात करें, लाइक अवॉइड, तो हमने वो चीजें अवॉइड करनी है जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करती हैं, जो लिवर को फर्दर डैमेज करती हैं। राइट, फर्स्ट तो ऑफकोर्स हम लिवर डैमेज की बात करते हैं, तो उसमें आप देखोगे द रिफाइंड कार्ब्स, अगर हम शुगर बहुत ज्यादा ले, रिफाइंड कार्ब्स बहुत ज्यादा ले, प्रोसेस्ड मीट्स ले, जैसे सॉसेजेस है, बेकन है, आप में उसमें आप देखोगे एक प्रिजर्वेटिव भी डाला होता है सोडियम नाइट्रेट करके, जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी बढ़ाता है। अगर आप बहुत ज्यादा हाई शुगर इनटेक करेंगे, इन्फ्लेमेशन भी बढ़ेगी, प्लस फैट स्टोरेज भी बढ़ेगी लिवर में, तो फैटी लिवर का प्रॉब्लम बढ़ेगा। देन अल्कोहल अगर बहुत ज्यादा कंजम्पशन हो रही है तो आप देखोगे उससे भी आपका अल्कोहलिक फैटी लिवर हो जाता है, जिसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आने लगती है बॉडी में। सो आपने अल्कोहल का कंजम्पशन भी मिनिमाइज रखना है। देन रेड मीट आप देखोगे अगर बहुत ज्यादा कंजम्पशन उसकी हो रही है, उससे भी लिवर डैमेज होता है। आपका वेट अगर बहुत ज्यादा है, उससे भी आप देखोगे आपका फैटी स्टोरेज लिवर में बहुत होता है। तो कैलोरीज आपने थोड़ा सा कम कंज्यूम करनी है। एंड इन जनरल जैसे प्रोसेस फूड्स, आपका शुगरी फूड्स, शुगरी बेवरेजेस, जैसे चीनी डाल के चाय कॉफी लेना, या आप कोई लेमनेड्स लें जिसमें आप बहुत ज्यादा शुगर कर रहे हैं, फ्रूट जूसेस का कंजम्पशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो इनसे आप देखोगे प्रोसेस फूड्स, शुगरी फूड्स, हाई कैलोरी फूड्स, फ्राइड फूड्स, बेकरी प्रोडक्ट्स में आप देखोगे एक काइंड ऑफ फैट यूज होती है विच इज कॉल्ड पार्शियली हाइड्रोजनेटेड फैट। जब आप फ्राइड फूड खाते हैं आप देखोगे उसमें जब ऑयल रीहीट होता है, जैसे आप देखोगे कोई चिप्स बन के आ रहे हैं आपके पास, प्रोसेस स्नैक्स, तो वो चिप्स जब बनाते हैं तो वो तेल डिस्कार्ड नहीं करते, उसी ऑयल में वो रीफ्राई करते रहते हैं, तो द लेवल ऑफ ट्रांस फैट राइजेस इन दैट पर्टिकुलर ऑयल। तो वो आप देखोगे वो आपकी बॉडी में बहुत इन्फ्लेमेशन करता है, आपके लिवर को बहुत डैमेज करता है। इस तरीके का ट्रांस फैट के कंजम्पशन से आप देखोगे आपका डाइजेशन भी डिस्टर्ब हो जाता है। आप बहुत ज्यादा अगर जैसे शुगरी फूड्स लेते हैं, प्रोसेस फूड्स लेते हैं, तो आप देखोगे आपकी डाइजेशन में भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो टॉकिंग अबाउट डाइजेशन, तो उनमें भी इन्फ्लेमेशन अगर रोकनी है तो ये सारी चीजें हमें रोकनी पड़ेंगी, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
सो मतलब अगर इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करना है तो नट शेल में आपको जो भी चीजें किसी फैक्ट्री में पास होके आ रही है, पैकेज होके आ रही है, वो हमें लेना अवॉइड करना चाहिए। और जितना घर में हम नेचुरल सब्जियां लाके कुक करके अगर हम लें तो उससे इन्फ्लेमेशन कंट्रोल हो सकता है और बढ़ने से रुक सकता है। एम आई राइट मैम? आई मीन दिस इज व्हाट आई हाँ, हैव वन। एग्जैक्टली मतलब अगर आप बहुत ज्यादा कोई प्रोसेस फूड्स ले रहे हैं या आप बहुत ज्यादा बेकरी प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं जिसमें मैंने वो पर्टिकुलर फैट बोली, हाइड्रोजनेटेड फैट, बहुत ज्यादा बाहर के स्नैक्स ले रहे हैं जिसमें रीहीटेड ऑयल यूज हो रहा है बहुत ज्यादा, तो ट्रांस फैट बहुत ज्यादा आ रही है, तो उससे आप देखोगे इन्फ्लेमेशन बहुत बढ़ती है, हमारे ऑर्गन्स भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, our digestion is also राइट। क्योंकि यस यू आर राइट। एंड कुछ कॉमन मिथ्स आप बोलना चाहेंगे इन्फ्लेमेशन और डाइट को लेके? हमारी वन ऑफ द फॉलोअर इज आस्किंग द कॉमन मिथ्स अबाउट द इन्फ्लेमेशन एंड द डाइट। द कॉमन मिथ तो आई थिंक यही है कि हम विदाउट यूजिंग सप्लीमेंट्स अपना डाइट कर सकते हैं, यू नो, एंटी इंफ्लेमेटरी, आई वुड से कर सकते हैं, बट देन इट वुड गो वेरी स्लो, यू नो, बिकॉज जैसे मैंने वो वॉलनट्स का एग्जांपल दिया, यू नो, 7 वॉलनट्स आप खा रहे हो विद द परसेप्शन के मैंने कर लिया अपना, यू नो, इन्फ्लेमेटरी डाइट कर लिया, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, बट इट इज नॉट वर्किंग इट सो इफेक्टिवली, यू नो, सो वो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि इट हैज टू बी डन इन अ होलिस्टिक मैनर। व्हाट इज द लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन, डू आई नीड सप्लीमेंट्स, कोई और डिसऑर्डर तो नहीं है, तो वो होलिस्टिक मैनर में डाइट करना है, यू नो, अ फ्यू सप्लीमेंट्स, एक्सरसाइज प्लस एन एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, यू नो, सो इट हैज टू बी डन इन अ होलिस्टिक मैनर। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसको इन्फ्लेमेशन है या उसकी रिपोर्ट्स ऐसे इंडिकेट कर रही हैं, तो एडवाइस यही होती है कि आप एक्सपर्ट डाइटिशियन, जैसे डाइटिशियन मिमी मैम है, ऐसे डाइटिशियन को अप्रोच करके अपने हिसाब से कस्टमाइज डाइट प्लान बनाए और अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सप्लीमेंट्स लेके अपनी हेल्थ को मैनेज करें। तो एक गाइडेड प्लान के संग आप अप्रोच करेंगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। आप अपने मन से कुछ भी समझ के ले, उससे बेटर है कि अंडरस्टैंड करके जिनके पास एक्सपर्टीज है उनकी गाइडेंस में करें। देर इज वन क्वेश्चन मैम, हमारे फॉलो पूछ रहे हैं कि कैन अश्वगंधा एंड ओमेगा 3 बी यूज्ड फॉर रीनल एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल पेशेंट्स आल्सो? Ashwagandha and what was the second one you said? ओमेगा 3। ओमेगा 3, यस डेफिनेटली। अश्वगंधा तो मैंने आपको बताया आपके स्ट्रेस हार्मोन की सिक्रीशन को कम करता है, कोर्टिसोल की हार्मोन की सिक्रीशन को कम करता है, आपकी बाउल्स में इन्फ्लेमेशन को कम करता है, तो अश्वगंधा इज वेरी मच एडवाइज्ड फॉर पीपल विद आईबीएस, यू नो, सो अगर किसी को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, इरिटेबल बाउल डिजीज है, तो अश्वगंधा आपकी बहुत मदद करता है। एंड फिश ऑयल अगेन, यू नो, लाइक आई सेड, फिश ऑयल वर्क्स इन वेरियस वेज, जैसे ये आपके एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, ये आपके फ्री रेडिकल्स को मॉप अप करता है, न्यूट्रलाइज करता है, देन इसमें यूटिलाइजेबल लाइक आई सेड फॉर्म में आपका आ रहा है, तो ये अपने आप में उसकी प्रोडक्शन बंद कर देता है, जो इन्फ्लेमेटरी जिनको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स कॉल्ड एज साइटोकाइनिन्स, यू नो, सो उस केस में भी आप देखोगे फिश ऑयल हेल्पफुल है कि आपका इन्फ्लेमेशन लेवल कम होएगा बाउल में, किडनीज में, तो फिश ऑयल ऑल्सो कैन बी टेकन इन सच डिसऑर्डर्स, यू नो, सो बोथ सप्लीमेंट्स आई थिंक कैन बी डन if a person is facing an issue with the kidneys or with the bowels. एक क्वेश्चन है, आई एम नॉट एबल टू, हाँ या, इफ somebody is admitted in hospital, how should he reduce the CRP levels? See, if somebody is admitted in the hospital, the situation doesn't change. You know, आपको फिर भी एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में ही जाना पड़ेगा, you know, and maybe we could use some supplements also, like I said, according to the condition कि वो hospitalized क्यों हुए हैं, उनको फैटी लिवर का प्रॉब्लम है कि आपका किडनी डिजीज है, किस चीज के लिए, या डिप्रेशन के लिए हुए हैं या डाइजेशन प्रॉब्लम के लिए हुए हैं, तो उसके मुताबिक हम हर्बल टीज एंड सप्लीमेंट्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट रेकमेंड करेंगे। समटाइम्स यू नो वी हैव टू यूज अ माइंड ऑल्सो, जैसे अगर किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है
नो हाइपोथायराइडिज्म उनका ऑटो इम्यून हो गया, समटाइम्स इट सो हैपेंस। तो फिर हम ये आपके जितनी भी क्रूसिफेरस सब्जियां उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, विच आई सेड हैज सल्फोराफेन, रिड्यूसेस द इन्फ्लेमेशन। बट अगर किसी का थायराइड डिस्टर्ब्ड है तो हम नहीं यूज कर सकते। तो यू नो इट डिपेंड्स ऑन फॉर व्हाट कंडीशन यू आर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, एंड उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए फिर हम आपका सीआरपी लेवल्स या इन्फ्लेमेशन को लोअर करने के लिए फूड्स या सप्लीमेंट्स या हर्बल टीज का यूज करेंगे। So like I said, an expert help has to be taken. Hospitals also nowadays have lot of dietitians. तो आप वहां पे उनकी मदद ले सकते हैं या बाहर किसी डाइटिशियन की मदद लेके सी रिएक्टिव प्रोटीन को कम कर सकते हैं। So then another question which we have is that what is gluten also causes inflammation? Yes, definitely. There is a specific disorder called as celiac disease. उसमें आप देखोगे ग्लूटेन इंटॉलरेंस हो जाती है। ग्लूटेन को भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे पास एक बार एक क्लाइंट आए थे विद एन एलर्जी टेस्ट जिसमें लिखा हुआ था वो ग्लूटेन सेंसिटिव है, और नीचे रिकमेंडेड फूड्स में लिखा हुआ था कि आप रोटी खाइए। आप वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ग्लूटेन इज अ प्रोटीन विच इज फाउंड इन व्हीट प्रोडक्ट्स, व्हीट एंड बार्ले प्रोडक्ट्स। तो अगर आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी है तो आपने सारे व्हीट प्रोडक्ट्स बंद कर देने हैं, विच मीन्स के आपने रोटी बंद कर देनी है, ब्रेड बंद कर देनी है, सूजी बंद कर देनी है। तो ग्लूटेन इज द प्रोटीन फाउंड इन व्हीट, एंड बहुत बारी आप देखोगे ग्लूटेन इंटॉलरेंस से भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो अगर ऐसा है तो उसको फिर हमें बंद करना पड़ेगा। we'll have to go for a gluten free kind of option. Gluten free diet में हमें जाना पड़ेगा to lower the inflammation. So that is why I said we have to analyze कि problem क्या है, is it a celiac disease or is it a kidney disease? Accordingly हमें anti-inflammatory diet planning करनी पड़ेगी। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एवरीडे इंडियन मील्स को में हम उसके संग कैसे एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट ले सकते हैं, और उसी के बेस पे एक हमारे फॉलोअर से भी क्वेश्चन आया है कि हम डेयरी प्रोडक्ट में को लेते हुए कैसे इन्फ्लेमेशन कम कर सकते हैं। सो आई मीन व्हाट्स योर एडवाइस? राइट, if we talk about dairy products specifically, first I'll answer that question. Dairies में भी आप देखोगे, dairy products में भी एक तो saturated fats जो हैं वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा करती हैं, तो don't go for a full fat dairy product. उसमें आप देखोगे इन्फ्लेमेशन भी बढ़ेगी, आपकी कैलोरी इंटेक भी बढ़ेगा, एंड सैचुरेटेड फैट से आपकी आर्टरीज भी ब्लॉक होंगी। सो गो फॉर एन ऑप्शन either for which is a vegan milk, जैसे आप almond milk ऑप्शन में चले जाओ, oat milk ऑप्शन में चले जाओ, आप कोकोनट मिल्क ऑप्शन में चले जाओ, एंड अदर वेज के आप जो मिल्क ले रहे हैं वो कम फैट कंटेंट वाला लो, गो फॉर अ टोन्ड और अ डबल टोन्ड ऑप्शन। तो वो आप देखोगे बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करेगा वर्सेस फुल फैट मिल्क। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, अगर हम बोलें डेली डाइट या डेली इंडियन मील्स के साथ हम कैसे एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट कर सकते हैं, तो आई वुड से धीरे धीरे आप स्टेप वाइज इन स्मॉल मेजर्स आप इसको इनकॉर्पोरेट करिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप ग्रीन टी लंच के बाद या मिड मॉर्निंग 1 कप जरूर लीजिए, थोड़ा सा गैप देके अपनी मील से, बिकॉज ग्रीन टी हैम्पर्स द न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, तो आयरन की एब्जॉर्प्शन को हैम्पर करता है। तो आप उसको थोड़ा सा स्पेस करके मील से 1 बार या 2 बार दिन में लीजिए। आप अगर स्ट्रेस से परेशान हैं तो आप कैमोमाइल टी सोने से पहले पीजिए। आप एक फिश ऑयल का सप्लीमेंट डाल सकते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग, तो आप देखोगे उससे भी आपका थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन लेवल्स लोअर होता है। स्टार्ट द डे विद अ टर्मरिक टी। जब आप नॉर्मल अपनी चाय पी रहे हैं उसमें जिंजर डालिए, अपने सैलेड्स के ऊपर जिंजर डालिए। स्टार्ट विद 2 क्लोव्स ऑफ गार्लिक इन द मॉर्निंग, सो इन्फ्लेमेशन लोअर होएगा। मिड मॉर्निंग अगर आपको लिवर प्रॉब्लम है तो आप डैंडलियन टी को ले सकते हैं, which will lower the inflammation in the liver as well as the general chronic inflammation lower करेगा। साथ साथ में फल और सब्जी डालिए, होल ग्रेन्स डालिए, जैसे किनुआ है, ब्राउन राइस है, लेंटिल्स है, पत्ते वाली सब्जियां हैं जैसे स्पिनच, फेनुग्रीक। अभी पत्ते वाली सब्जियां विंटर्स में बहुत अच्छी आ रही है।
आप बेरीज खाइए, स्ट्रॉबेरीज बहुत अच्छी आ रही हैं, तो वो बड़ा अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स आपको देंगी। तो स्टेप वाइज धीरे धीरे, ये नहीं कि सारी चीजें इकट्ठी की, बट स्टेप वाइज इन स्मॉल बेबी स्टेप्स start incorporating these things in your diet. If you have a heart problem, heart related issues, तो आपका ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट बहुत इफेक्टिवली वर्क करता है इन हार्ट रिलेटेड इश्यूज, तो मे बी यू कुड गो फॉर अ ग्रेप सीड सप्लीमेंट। अगर आपको डायबिटीज मेलाइटिस है, बहुत बार पेशेंट्स को लगता है कि, बहुत से पेशेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं कि पिछले 2 महीने 3 महीने से मैम हमने शुगर इनटेक ही नहीं किया, फिर भी हमारा HbA1c टेस्ट ठीक नहीं हो रहा है। तो व्हाट दे आर नॉट फोकसिंग ऑन इज द लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन। जब तक इन्फ्लेमेशन लोअर नहीं होगा, शुगर लेवल्स रिड्यूस नहीं होती। तो आप मीठा बंद करने के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट भी शुरू करिए, तो उसमें आप देखोगे आपका ज्यादा इफेक्टिवली वर्क होता है। इफ यू हैव एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जॉइंट डिसऑर्डर है, जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस है आपको, तो आप एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट के साथ करक्यूमिन सप्लीमेंट डालिए, आप देखोगे जॉइंट्स को बहुत रिलीफ मिलता है। सो इफ यू हैव रूमेटाइड आर्थराइटिस या नॉर्मल आर्थराइटिस, तो आप देखो आप करक्यूमिन सप्लीमेंट डालेंगे, हाउ इफेक्टिवली इट वर्क्स। इफ यू हैव समथिंग लाइक पोस्ट कैंसर ट्रीटमेंट गोइंग ऑन, उसमें भी करक्यूमिन सप्लीमेंट बहुत इफेक्टिवली वर्क करता है इन द हीलिंग प्रोसेस। सो बेबी स्टेप्स इन द डेली डाइट। राइट। एक क्वेश्चन है मैम यूर का कि क्रिएटिनाइन भी हाई है, CRP भी हाई है, तो फिर व्हाट सप्लीमेंट्स डू यू सजेस्ट? If the creatinine levels are high, like I said, सबसे पहले तो हम नेटल लीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेटल लीफ इन्फ्लेमेशन भी लोअर करेगा और आपका क्रिएटिनिन लेवल्स भी करेगा, बिकॉज इट वर्क्स लाइक अ माइल्ड डायूरेटिक, यूरिनेशन बढ़ेगा। तो आप देखोगे नेटल लीफ इज वेरी इफेक्टिव as a herbal tea if somebody has a high creatinine level or a kidney disorder. उसके साथ साथ आप में भी अगर उसका कोलेस्ट्रॉल इंप्रूव करना चाहते हैं, तो यू कैन स्टार्ट विद अ फिश ऑयल सप्लीमेंट। सो बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स में तो हम नहीं जाते इफ अ पर्सन हैज अ किडनी डिसऑर्डर। सो मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिश ऑयल एंड नेटल लीफ एज अ हर्बल टी वर्क्स वेरी वेल फॉर किडनी पेशेंट्स। मेरा एक क्वेश्चन था मैम, जब आप डेयरी प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, तो दही किस कैटेगरी में फॉल करता है? इन्फ्लेमेशन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीपाली, व्हिच आई मिस्ड आउट। जब आप प्रोबायोटिक्स का यूज करते हैं, जैसे आप दही ले रहे हैं, कांजी ले रहे हैं, या डेयरी को हम कन्वर्ट कर देते हैं इन दही, कई बार आप देखोगे लैक्टोज इंटॉलरेंस, लैक्टोज इज द शुगर इन मिल्क, तो लैक्टोज इंटॉलरेंस से भी आप देखोगे बहुत बार ये इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। तो अगर हम दही को, दूध को कन्वर्ट कर दें इनटू दही, so there is a breakdown of lactose into glucose and galactose, so automatically जो lactose से inflammation हो रहा था बॉडी में, वो रिजॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। so curd would help in lowering the inflammation. in general also अगर हम probiotics या fermented foods अपनी डाइट में डालते हैं, तो it works to lower the inflammation, it works in the anti-inflammatory diet. तो आप डेयरी को दही के फॉर्म में लें, तो दैट इज अ better way of doing the anti-inflammatory diet. So any diet changes you recommend if one is facing acute hair fall? This is a question from one of our listener right now. Right. So अगर आप हेयर फॉल का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपकी हेयर फॉलिकल्स की हेल्थ को हमने इम्प्रूव करना है। अगर हम हेयर फॉलिकल्स की बात करें, तो बहुत अच्छा वो रिस्पॉन्ड करते हैं टू अ फिश ऑयल सप्लीमेंट। so maybe a fish oil supplement can be done to improve the health of the hair follicles. Hair follicles की health improve होएगी, तो automatically आपकी hair growth improve होएगी, right? And maybe we can do a cup of green tea also, because उसमें आप देखोगे बहुत good amount में catechins होते हैं, तो green tea also is very very effective in stopping hair fall. Plus of course in general अगर हम बोले तो protein आप improve करो, sometimes deficiency of iron also causes hair fall, तो iron अपना diet में improve करो। बहुत सारी चीजें, it's not just inflammation, we'll have to go deep into the the discussion of hair fall, so which is I think not the context right now. Right. तो in general आप fish oil का supplement या omega 3 upscale कर सकते हो अपनी diet में to improve the health of your hair follicles. मनोज शंकर जी ने शायद हमें लेट ज्वाइन किया, वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज CRP, हाउ टू रिड्यूस CRP लेवल।
सी सीआरपी आर द सी रिएक्टिव प्रोटीन्स, ये एक मार्कर होता है विच इज आपके इन्फ्लेमेशन लेवल को शो करता है। तो नॉर्मली अगर हमें सीआरपी लेवल्स रिड्यूस करनी है तो हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इट इज एन इन्फ्लेमेशन मार्कर, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स। तो आपको अगर ये इन्फ्लेमेशन मार्कर्स कम करने हैं तो आप एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में जाइए। प्लस रिलेटेड क्लिनिकल डिसऑर्डर देखिए कि क्या है, किस लिए सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ा हुआ है। अगर वो नॉर्मल इन्फेक्शन के कारण बढ़ा हुआ है तो फिर हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट की जरूरत नहीं है। इट इज अक्यूट इन्फ्लेमेशन, वो इन्फेक्शन को हम किल करेंगे विद एंटीबायोटिक्स एंड ऑल, तो ऑटोमेटिकली आपका ठीक हो जाएगा सी रिएक्टिव प्रोटीन। At that moment of time, anti-inflammatory diet is not needed. But if the causative factor is not there and आपका सीआरपी बढ़ा हुआ है तो फिर आप एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में जाइए। तो वही उसी के ऊपर एक सवाल ये था मैम कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट जिसपे हमने सेशन रखा है, तो ये क्या लाइफ टाइम लेना होता है कि ये शॉर्ट टर्म लेना होता है? See, this is an anti-inflammatory diet is definitely not a short-term goal. आप देखोगे अगर शॉर्ट टर्म डालेंगे आपका इन्फ्लेमेशन लेवल लोअर होएगा और फिर बढ़ जाएगा। इसको एक लाइफस्टाइल चेंज की तरह हमने करना है, अ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। एंड ऑल दीज फूड्स व्हिच वी सजेस्टेड आर वेरी वेरी हेल्दी। अगर आप टर्मरिक अपनी डाइट में डाल रहे हैं, गार्लिक डाल रहे हैं, जिंजर डाल रहे हैं, पत्ते वाली सब्जियां खा रहे हैं, उससे आपको बहुत से और भी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, राइट? सो इट इज अ वे ऑफ लाइफ। नॉर्मली जब भी हम कोई डाइट करते हैं, वी से कि आप अपना परसेप्शन बदलिए। अगर आप वही सब खाते रहेंगे, यू विल कंटिन्यू टू डू योर शुगरी फूड्स, हाई कैलोरी फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, फैटी फूड्स, तो वो आपका वापस सिचुएशन वहीं पे पहुंच जाएगा जहां पे आप शुरू हुए थे। So you have to break that vicious cycle. And if you want to break that vicious cycle, make this a lifelong perception. Okay, little bit of exercise, little bit of anti-inflammatory, supplements, anti-inflammatory, diet. तो सारे की कॉम्बिनेशन में आप देखोगे लाइफ लॉन्ग अगर ये परसेप्शन कंटिन्यू होगी तो डेफिनेटली you will make a turnaround, and you will lead a more healthier life, a more better life, less of diseases. Right. Right, ma'am. I think this was an absolutely eye-opening session for everybody. आपने इतनी valuable information हमको inflammation के बारे में दी जो कि एक बहुत ही ignored subject है और unknown भी है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो आपने इतनी सारी चीजें इतनी सिंपल तरीके से explain की। आई एम श्योर कि आज के सेशन को सुनने वालों को जरूर फायदा होगा। और अगर आपको लगता है आपको फायदा हुआ है तो प्लीज आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के संग भी ये शेयर कीजिए, जिससे सबको करेक्ट इंफॉर्मेशन, एक एक्सपर्ट से इंफ्लेमेशन के बारे में पता चले और क्या फूड्स लेने चाहिए, क्या नहीं लेने चाहिए, ये सब में क्लैरिटी आए। तो मैम आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, हमारे लिसनर्स के लिए निकाला और बहुत ही इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट सब्जेक्ट के ऊपर इतना टाइम हमें दिया, अपनी नॉलेज शेयर की। आई वांटेड टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट आपके ये वक्त निकालने के लिए। इट वाज वंडरफुल सेशन एंड इनक्रेडिबल इनसाइट्स वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम यू टुडे मैम। Thank you so much for giving us time, and also I wanted to thank you for the appreciation you have shown for Bessos Nutrition and the supplement range of Bessos Nutrition. Thank you so much, ma'am. Definitely, it was a pleasure on my part because I have been with Bessos, I have been using their supplements for the past 10-15 years and बहुत ही अच्छा मुझे response मिला है, बहुत ही अच्छा मेरा reversals हुए हैं। So some of the results I keep sharing with them also, diabetes reversal or autoimmune disorder has reversed, kidney disorder has reversed. So बहुत अच्छे results मुझे मिले हैं। So I have great, gratitude to them for making such wonderful supplements and also getting me on this platform, to discuss important things about diet. So thank you so much, Dipali. God bless you. Thank you so much for trusting us, ma'am, and thank you for giving us time for Bessos Nutrition. Thank you so much. With that, I end your session. अगर आप लोग मिमी मैम के संग कनेक्ट करना चाहते हैं और आपके और भी सवाल हैं तो आप अपने कमेंट सेक्शन में डालिए। वी विल मेक श्योर कि हम पूरी तरह ट्राई करेंगे कि आपको मिमी मैम के संग कनेक्ट कर सके। थैंक यू सो मच।
for joining us. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you.